Good morning, students. Welcome to our today's class. Today we are going to see the further topic of yesterday's chapter, the chapter number 13, that is the motion and time. Okay, so let's see the further topic. But before seeing, let's do some small recap. Yesterday we have seen that what is the speed? What is the speed? Speed is nothing but the distance upon time. It means that how much distance you have covered in a specific time, that is called as your speed. Okay, then we have seen that what is the motion. Motion means if the object changing its position, then we called it as a motion. Okay, for example, now here this is the pen. Okay, and I am just giving some force here. Okay, so it just moved its position. First it was here, now it is here. Okay, so it just changed its position. So when the object changes position, that is called as a motion. Okay, and if it is not changing the motion, if it is not changing the position, see, now it is not changing the position, it is as it is where I kept. Okay, so we will call it as a rest. Okay, so this object, it is in rest. If the object not change its position, then we call it as a rest. Clear? Okay, so in this way we have seen what is the motion and what is the speed, and also we have seen some types of the motion. What are that? Motion are of two types. One is the uniform motion and another is the non-uniform motion. Uniform motion means in a particular time interval, if it covers the particular distance, then it is called as a uniform. And non-uniform, in a particular time, it's not cover the particular distance, means an unequal time interval, it is not covering the equal distance. For example, in a 5 minute, in every 5 minute the distance covering is different. Means in first 5 minute it's covered 10 meter distance, the next 5 minute it cover the 8 meter distance, and in next 5 minute it cover the 5 meter distance. Means here the time is same but the distance is not same, so that is called as a non-uniform motion. And if in every 5 minutes if I cover the 10 meter distance in every 5 minutes, then I will call it as a uniform motion. Okay, so students, now we had done a small recap of yesterday's topic. Now let's see the further topic. Now let's see the new topic, that is a unit of speed. See, what is the meaning of unit of speed? Unit का मतलब होता है कि speed हम किसमें गिनते हैं. जैसे कि देखिए, लेंथ अगर मुझे गिननी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ इतनी लंबी अगर लाइन मैंने खींची, तो ये मैं गिनती हूँ सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, या ज़्यादा बड़ी है तो मीटर में, उससे भी ज़्यादा बड़ी है तो किलोमीटर में. तो ये उसके यूनिट हो गए. तो वैसे ही हमारे स्पीड का क्या यूनिट है वो हम देखेंगे. देखिए, जो यूनिवर्सल में, मतलब यूनिवर्सल इन द सेंस जो दुनिया भर में हम एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं. मतलब SI यूनिट, दैट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ओके, तो हमारे स्पीड का जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे M/S लिख सकते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, स्पीड जो है, स्पीड की डेफिनेशन क्या बोलती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम. ओके, इसका मतलब इतने गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको स्पीड कहते हैं. और ये जो डिस्टेंस होता है वो हम किस में गिनते हैं? डिस्टेंस को हम मीटर में गिनते हैं. ओके, और ये जो टाइम होता है, टाइम को हम सेकेंड में गिनते हैं. इसीलिए अगर जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू D/T अगर होता है, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम अगर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? D का मतलब होता है M, क्योंकि हमने उसको मीटर में गिना है. टाइम का मतलब होता है सेकेंड. ठीक है, क्योंकि टाइम को हमने सेकंड में गिना है, इसीलिए स्पीड का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड. अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ एक आपको क्या दिया हुआ है? टेबल दिया हुआ है. देखिए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का यूनिट कैसे है? डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर होता है. मतलब छोटा अगर यूनिट है तो सेंटीमीटर, उससे बड़ा है तो मीटर, उससे भी बड़ा होता है तो किलोमीटर. उसके बाद देखिए टाइम. टाइम का क्या है? सेकंड, उसके बाद मिनट, फिर आवर्स. और यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में और टाइम जो है सेकंड में अगर दिया है, तो आपके स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड. देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड. उसी तरीके से अगर आपका डिस्टेंस दिया है मीटर में और आपका
टाइम दिया है मिनट में, तो आपका स्पीड का यूनिट बन जाएगा मीटर पर मिनट। अंडरस्टूड। अब ये मैं कैसे ले रही हूँ आपको समझ में आ गया है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना। ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ले रही हूँ। देखिए, अगर मेरा जो डिस्टेंस है अगर वो किलोमीटर में रहता है और मेरा टाइम जो है आवर्स में रहता है, तो मेरा स्पीड का जो यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपका जो भी यूनिट है स्पीड का, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, मतलब आपकी जो डिस्टेंस और टाइम की जो क्वांटिटी है उसको हमने किस यूनिट में लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्पीड का यूनिट बनेगा। ओके, सो यू गॉट दिस। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेजरिंग स्पीड। अब हमें मेजरिंग स्पीड बोले तो क्या होता है। देखिए, हमने देखा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन अ इक्वल इंटरवल। मतलब एक, जैसे कि ये भी 5 मिनट है, ये 5 मिनट में हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 मीटर और ये 5 मिनट, ठीक है। इसमें हमने ये इतना सा डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन टाइम लिया है हमने 5 मिनट, और यहाँ पे सिर्फ 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब देखिए, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ऐसा जो स्पीड रहता है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब स्पीड हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना लिया है, यहाँ पे देखिए 10 + 5 बोले तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, कितना टाइम लिया है इसने, 10 मिनट लिया है। ओके, सो 10 मिनट, टोटल कितना, 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इट विल बी द एवरेज स्पीड। ओके, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है स्पीड अगर है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 क्वांटिटी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, स्पीड की भी, डिस्टेंस की भी और टाइम की। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस को यहीं पे रहने दूंगी और इस टाइम को इधर लेके आ जाऊंगी। स्पीड तो ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, ओके, और डिस्टेंस कहाँ पे है, राइट साइड में है, तो मैं डिस्टेंस को उधर ही रखूंगी। मुझे सिर्फ टाइम को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। आप मैथ्स पढ़ते हो, इतना तो आपको पता ही है कि मैंने ये कैसे किया है। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ओके, ये तो स्पीड का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस का। उसी तरीके से टाइम का भी फॉर्मूला बनेगा। टाइम अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैं इधर लेके आ जाऊंगी तो ये न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी द डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला देखिए, ये और ये, दीज आर द सेम फॉर्मूलेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक फॉर्मूले से आप 3 चीजें निकाल सकते हो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। मतलब तीनों की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। Okay students, now let's see the another topic, that is the speedometer. See what is the speedometer. Here is the diagram of the speedometer. You can see speedometer in a car. Actually by the name itself you come to know that what does mean it. ये क्या कर रहा होगा, स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड आपको बताता है। मतलब आपकी गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही, 40 के, 80 से, या जो भी है, इस तरीके से वो आपको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक है, ये देखिए, ओके। और ये जो होता है बीच में, दिस इज, ये आपको क्या बताता है, ये आपको डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो हमने स्पीडोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपकी ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं, और जो आपको क्या दिखाता है, क्या शो करता है, आपकी स्पीड शो करता है, आपकी गाड़ी कौन से स्पीड से चल रही है। और ये हमेशा किलोमीटर की रेंज में आपको बताएगा, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो वो तो सेंटीमीटर की रेंज में नहीं चलेंगी, तो हमें बड़ा यूनिट लेना पड़ेगा, और टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ पे बड़ा यूनिट लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के फॉर्मेट में ये आपको क्या दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा। दूसरा है दैट इज द ऑडोमीटर। ये जो ऑडोमीटर होता है ये आपको क्या दिखाता है, ये भी कार्स में लगे रहते हैं, और ये आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, जो कि वो आपको मीटर में बताएगा। मतलब आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर
आगे बढ़ी है, मतलब कितने आगे बढ़ी इन द सेंस कितने किलोमीटर चली है, ये आपको ऑडोमीटर बताता। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मीटर से स्पीडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, ये सब आपके ऑटोमोबाइल्स में रहते हैं। देखिए ये वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द ऑडोमीटर जो कि कार में लगा होता है, एक तरफ ऑडोमीटर है एक तरफ स्पीडोमीटर है। ठीक है, तो ये ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या है, दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी यूज टू मेजर द स्पीड ओके बाय द स्पीडोमीटर एंड डिस्टेंस बाय द ऑडोमीटर। क्लियर। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बच्चों आज के लिए आपको ये होमवर्क है, आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्ट एंड द मोशन, ये दोनों के आपको डिफरेंशिएशन लिखना है। स्पीडोमीटर क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। ऐसा यूनिट स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए मोशन के कौन से डिफरेंट टाइप्स है ये आपको लिखना है, मेरे ख्याल से कल हो गया है ये। उसके बाद आपको लिखना है कि हाउ इज स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ये आपको दिखाना है। ठीक है, देन यू हैव टू शो व्हाई ऑडोमीटर इज यूज्ड इन द व्हीकल, ऑडोमीटर हम व्हीकल में क्यों यूज करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अगर ये थोड़ा आपको नहीं आया तो ये मैं बता दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सवाल है, 1 क्वेश्चन एंड हियर 2 एंड हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन। दिस क्वेश्चंस आल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए मैं समझा के देती हूँ किस तरीके से किया है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले देखना है कि व्हाट इज गिवन और उसको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है। अ बॉय cycle down from his house to his school at a speed of 24 km per hour okay and reach school in 20 minutes। मतलब यहाँ पे इनकी स्पीड क्या है, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे मिनट बोला, इसका मतलब टाइम क्या है 20 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन। और मैंने पहले ही बोला था इस फॉर्मूले से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, स्पीड की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्टेंस की भी और टाइम की भी। लेकिन कोई भी किसी भी चीज की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो रिमेनिंग 2 चीजों की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है तो टाइम की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी गिवन चीजें हैं, हमने अब इसको क्या करना है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को इधर ही रखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने पहले बताया था, देखो हमने क्या किया था, डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस को हमने राइट हैंड साइड में ही रखा और टाइम को हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, तो ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये इधर में न्यूमरेटर में आ गया, इसीलिए ये फॉर्मूला बनेगा उसका। देखो यही फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे टाइम बोला है 20 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर बाय आवर है, तो टाइम को भी हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/3 आवर्स। अब इसको आपको इस फॉर्मूले में लगाना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट। देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय में क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा 24 इंटू 1/3। अब 24 इंटू 1/3 बोले तो 24 इंटू 1 और यहाँ पे डिवाइड बाय 3। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 8। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, आपने डिस्टेंस कवर किया है 8 किलोमीटर। अंडरस्टूड। लास्ट में आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा के दिया है, रेस्ट ऑफ द 2 एग्जाम्पल्स इज गिवन टू यू। अब ये आपने क्या करना है, अपनी बुक में लिखना है। ओके, सो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। सो सी यू टुमारो।